Hello everyone, welcome again to online session of One Law classes. I'm Dinesh Kumar and I'm former assistant professor of law at Campus Law Center, Law Faculty, Delhi University, and presently I'm working as an academic head of One Law classes. So dear students, in today's session I will discuss with you the state of Rajasthan versus Phul Singh. This decision was delivered by Honorable Supreme Court on 2nd September 2022 and it is one of the landmark judgment. But before moving to the main discussion part, there is an important announcement for all of you. Admissions are open for droppers batch from 1st September at One Law classes. All of you may get yourself enrolled with us for getting the best result, and for more information you can dial on the given number, that is 9971 444 054. Dear students, the date of CLAT examination is 18 December 2022. So prepare yourself accordingly and wish you all the best. So now we come to this main case or the facts of this case. So what happened in this case? The name of the case is State of Rajasthan versus Phul Singh. So basically the respondent Phul Singh, he joined the Rajasthan Police Service in 1987. 1987 में इसने राजस्थान पुलिस को ज्वाइन किया. In the same year he was posted at Mania police station. It was a place, and this police station fall in the Dholpur district of Rajasthan. So what happened on 15th October 1987, he took some liquor and he was off duty, means he was not on duty, but he was in the police uniform, and one more person was with him. The name of that person was Lokman. So basically on 15th October 1987 he was off duty but he was in police uniform, and he caught one person, namely Mahesh Kumar. इसने महेश कुमार को पकड़ा and he demanded 100 rupees from Mahesh Kumar, but Mahesh Kumar refused to give him 100 rupees. So he asked to show the papers of this motorcycle, and Mahesh Kumar denied to show these papers to him. So Phul Singh took his motorbike and motorcycle and tried to run away. So at that point of time Mahesh Kumar raised the alarm, and some people, or means the crowd, followed this Mr. Phul Singh. Phul Singh, when the crowd was following this Phul Singh, he shows the gun to create the deterrent effect in the mind of crowd, but the crowd did not stop, and after some time he went to his house which was nearby, and he also fired from that place upon the crowd, and in the firing one of his family member was also injured. Now subsequently FIR was registered against this respondent Phul Singh under section 392 read with section 300/25 of Indian Arms Act. So दो सेक्शन में इसके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई, और सिमिलरली फिर इसके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम हुए. सो FIR रजिस्टर हुई इसके खिलाफ 392, 307, सेक्शन 34 ऑफ द पुलिस एक्ट एंड दिस सेक्शन 3/25 ऑफ द आर्म्स एक्ट, और चार्जशीट इसके खिलाफ जो फाइल हुई वो दो सेक्शन में फाइल हुई, 392 एंड 3/25 ऑफ द आर्म्स एक्ट. अब आप समझेंगे कि इसके खिलाफ जो FIR है वो चार सेक्शन में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन चार जो फ्रेम हुए वो केवल दो सेक्शन में फ्रेम हुए, and he was convicted by the trial court. So for the offense, he was convicted by the trial court for the offense of robbery and having the weapon, that is under section 3/25 of the Indian Arms Act.
and he was awarded 1 year's imprisonment by the court. So he challenged the decision of this trial court before the court of session, and court of session acquitted this person. Means court of session reversed the decision of the trial court. कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और कोर्ट ऑफ सेशन एक्विटेड दिस पर्सन फूल सिंह ऑन द ग्राउंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट. अब यहां पर हम एक्विटल को समझेंगे. एक्विटल मीन्स व्हेन द गिल्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देन दैट पर्सन इज एक्विटेड. अब यहां पर एक्विटल बच्चों दो तरह का होता है. वन इज द एक्विटल ऑन मेरिट. एक्विटल ऑन मेरिट. दूसरा है एक्विटल ऑन द ग्राउंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट. तो पहला एक्विटल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. मेरिट का मतलब यह है कि उस पर्सन के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिले, कोई एविडेंसेस नहीं मिली, तो ऑनरेबल कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर देता है. बट बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब यह है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द गिल्ट ऑफ दैट पर्सन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस. तो यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड. सो दिस पर्सन फूल सिंह was not acquitted by the honorable court on the basis of merit, rather he was acquitted by the honorable court on the basis of benefit of doubt. ये पॉइंट समझना हमारे लिए यहाँ मैंडेटरी है. What happened? So this acquittal order of court of session was challenged by this Rajasthan government before the single judge of the honorable High Court of Rajasthan. But honorable High Court of Rajasthan did not set aside this acquittal order of this respondent Phul Singh. Means honorable High Court ने जो सिंगल जज थे उन्होंने सेशन जज के ऑर्डर को में कोई चेंज नहीं किया या उसको सेट असाइड नहीं किया. फिर स्टेट ऑफ राजस्थान जाते हैं डिवीजन बेंच के पास उसी हाई कोर्ट में, लेकिन वहां से भी स्टेट ऑफ राजस्थान को कोई रिलीफ नहीं मिला. देन स्टेट ऑफ राजस्थान अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो वहां से स्टेट ऑफ राजस्थान अपील में जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. नाउ द मेन इश्यू बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज दैट कि अगर कोई पर्सन एक्विट हो गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, तो क्या उसी सेम फैक्ट के आधार पर उस पर्सन को उसके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में एक्विट करना जरूरी है या एक्विट किया जा सकता है या नहीं. मीन्स सपोज ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रॉबरी अंडर सेक्शन 392 और ही वाज आल्सो हैविंग द पोजीशन ऑफ वेपन एंड ही वाज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 3/25 ऑफ द इंडियन आर्म्स एक्ट. अगर उसको कोर्ट ऑफ सेशन ने एक्विट कर दिया है तो उस पर्सन के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही थी साइमल्टेनियसली और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में उसको डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से. तो क्या अगर पर्सन एक ग्राउंड पर एक्विट हो जाता है या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्विट हो जाता है, क्या उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का बेस बनाकर उसको उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई हैं, क्या उसमें भी उसको एक्विट किया जा सकता है? नाउ दिस वाज द मेन इशू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. इन दिस केस द कंटेंशन ऑफ द एपिलेंट मीन्स स्टेट ऑफ राजस्थान. तो स्टेट ऑफ राजस्थान ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और जो हमारी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसीडिंग्स. ये दोनों प्रोसीडिंग्स डिफरेंट होती हैं. एंड इफ ए पर्सन हैज बीन एक्विटेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, देन इट डज नॉट मीन दैट that person should also be acquitted or the person should also be reinstated in the department. ठीक है. तो अगर एक पर्सन को कोर्ट की प्रोसीडिंग में या कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बेनिफिट ऑफ डाउट पर एक्विट कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में भी उस पर्सन को एक्विट किया जाए.
This was the contention on the part of appellant, means the state of Rajasthan. Respondent, फूल सिंह के पार्ट पे कंटेंशन क्या थी? द कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट वाज दैट कि जिस सेम फैक्ट पर, सेम फैक्ट मतलब ही कमिटेड रॉबरी और ही वाज हैविंग द वेपन एंड विच बोथ ऑफ देम आर ऑफेंस अंडर सेक्शन 392 एज वेल एज सेक्शन 3/25 ऑफ द इंडियन आर्म्स एक्ट. तो अगर एक फैक्ट पर किसी पर्सन को ऑनरेबल कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्विट कर दिया है बेनिफिट ऑफ डाउट पर, so benefit of doubt means there were no sufficient evidence against the accused person, तो उसी आधार पर उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट इनिशिएट की गई हैं एक्विट किया जाना चाहिए. So honorable Supreme Court heard the contention of both the parties and came to the following conclusion. So honorable Supreme Court ने इस केस में कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बोथ आर एंटायरली डिफरेंट, दोनों एंटायरली डिफरेंट हैं. क्यों? अगर कोई पर्सन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बेनिफिट ऑफ डाउट पर एक्विट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में भी उसको एक्विट किया जाए या उसको दोबारा से सर्विस में रीइंस्टेट किया जाए. ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर वो पर्सन बेनिफिट ऑफ डाउट पर ना एक्विट होता एंड दैट पर्सन माइट हैव बीन एक्विटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्विटल दो तरह से होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तब इस बात को कंसीडर किया जा सकता था. लेकिन इन द प्रेजेंट केस द पर्सन वाज एक्विटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सो दिस एस्पेक्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड हेयर. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर दो प्रोसीडिंग्स में मींस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में डिफरेंस बताया एंड अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. सो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज मींस अगर किसी पर्सन के पास कम एविडेंसेस भी हैं तो वहां पर प्रिजम्पशन की पावर डिसाइडिंग अथॉरिटी के पास ज्यादा होती है and even on the basis of less evidences the person can be convicted by the deciding or adjudicating authority. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेकिन जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वहां पर ये होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना किसी के गिल्ट को इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस बोथ द प्रोसीडिंग्स आर डिफरेंट एंड दे आर यूज्ड इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर अगर पर्सन किसी एक प्रोसीडिंग में मींस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक्विट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, देन द सेम प्रोसीडिंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द एक्विटल ऑफ द रेस्पोंडेंट इन द गिवन सिचुएशन. So this is one of the landmark judgment of Honorable Supreme Court. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next latest landmark judgment. Till then, thank you very much. Goodbye.